प्यारे बच्चों, प्रिय बच्चों एंड माय वेरी लविंग चिल्ड्रन ऑफ क्लास 9। बच्चों, आप लोगों को याद होगा कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को मैं टेक्टोनिक प्लेट्स और प्लेट बाउंड्री के बारे में मैं जिक्र किया था, मैं आपको बताया था। ठीक, अब हमें इंडिया के कुछ अन्य फीचर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। आप जानते हैं कि इंडिया हमारा बहुत विशाल है। इंडिया इज वेरी वास्ट कंट्री। It is seventh largest country in the world, and India is also known as great diversities. भारत विविधताओं का देश है। Being the very vast country, India is also well-known country as varied features, natural features, geographical features. अब यहाँ पर India has been divided into several physical divisions. अब हमें आज के टॉपिक पढ़ना है फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया, राइट। क्योंकि एक तरफ देखते हैं, जब व्हेन वी सी द मैप ऑफ इंडिया वी फाइंड दैट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इट इज कवर्ड विथ ग्रेट लॉफ्टी माउंटेन्स विच आर नोन एज हिमालय। व्हेन वी look just below the Himalaya region, we see the other feature of India that is known as Great Northern Plains. To the south of Northern Plains, the other physical feature of India that is called what? Peninsular Plateau. जब हम इंडिया के वेस्टर्न भाग की तरफ निगाह दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि उधर क्या है, बहुत बड़ा डेजर्ट है। उस डेजर्ट का नाम क्या है? उसका नाम है थार डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। एक वह भी फिजिकल डिवीजन है। जब हम इधर अब बे ऑफ बंगाल और अराबियन सी के नजदीक वाले क्षेत्रों की तरफ ध्यान आकृष्ट करते हैं, वी फाइंड व्हेन वी अट्रैक्ट आवर माइंड टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल एंड अराबियन सी, we find that just near the Bay of Bengal and Arabian Sea there are some plains which are known as coastal plains, right? उसके बाद not only this main feature, main body of India, but being the part of Indian subcontinent now of our country, there are two important parts which are known as islands. These islands are located in the sea. You know that the land area that is here, the land, any piece of land, either small piece of land or a very large piece of land that lies, that is surrounded by water, large amount of water from all sides, that land is called what? Island. तो इंडिया के दो आइलैंड है। एक आइलैंड लक्षद्वीप आइलैंड है जो कि अराबियन सी में है, और एक आइलैंड अंडमान निकोबार आइलैंड जो कि कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में है। तो बच्चे, मैं आपको आज के इस वीडियो में मैं फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया, पहला the Great Himalaya, right? Second, the Northern Plains. Plains of Plateau. Fourth, desert. 5, coastal plains. And then groups. Dear children, see here. I have mentioned here the physical divisions of India.
the Great Himalayas, the northern plains of India, the Peninsula Plateau, the Great Indian Desert, the coastal plains, and 6 island groups. Here, dear children, just I mentioned all physical features of India, but I'd like to explain one by one. First of all, today I would like to explain about the Himalayas. See, now see बच्चे, the Great Himalayas. You know that Himalayas are very, very important mountain, especially for India. भारत के लिए तो बहुत ही important mountain है. You know that they are the loftiest and highest, greatest peaks of greatest mountains of the world, right? Being location of India, a big location of these mountains just to the north of India from west to east. India is greatly influenced by Himalaya. हिमालय से इंडिया को बहुत ही फायदा होता है. आप जानते हैं, आप पिछले लोअर क्लास में पढ़े होंगे कि हिमालय जो है वह नॉर्थ से आने वाली, साइबेरिया के तरफ से आने वाली ठंडी और बर्फीली हवाओं को, पोलर रीजन, नॉर्थ पोल एरिया की तरफ से आने वाली ठंडी और बर्फीली हवाओं को रोकता है, रोकर इंडिया को उन बर्फीली ठंडी हवाओं से बचाता है. नहीं तो क्या होता, इंडिया में भी ठंडी हवाओं का प्रकोप अधिक रहता और इंडिया में अधिक ठंड पड़ती, अत्यधिक ठंड पड़ती, असहनीय. हिमालयज वो प्रहरी काम करता है. नॉट ओनली these, but Himalayas also protect from enemies coming from north. हिमालय का प्रभाव बहुत अधिक क्लाइमेट पड़ता है. यदि हिमालय नहीं रहता तो यह क्लाइमेट दूसरी ही रहती. ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो कि इंडिया में, जो कि भारत में पाई जाती है, दैट इज मेनली ड्यू टू द लोकेशन ऑफ हिमालयाज, राइट? क्योंकि हिमालय मानसून हवाओं को रोककर बारिश कराने में बहुत बड़ा हिमालय का योगदान है. देयर इज ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ द हिमालयाज फॉर गिविंग रेनफॉल, मॉडरेट टू हाई रेनफॉल इन इंडिया बाई मानसून विंड्स. उसको चेक करते, हिमालय चेक द मानसून विंड्स एंड हिमालय डू नॉट अलाउ द मानसून विंड्स टुवर्ड्स नॉर्थ. तो इस तरह से हिमालय से इंडिया को बहुत ही फायदा है. तो जिस फीचर से, जिस नेचुरल स्ट्रक्चर से हमें इतने फायदे हैं, हमें इतने लाभ मिलते हैं, वी आर गेटिंग सो मेनी बेनिफिट्स फ्रॉम हिमालय, तो व्हाई शुड नॉट वी स्टडी अबाउट द हिमालय. ठीक, तो हिमालय इधर जम्मू कश्मीर से लेकर, मैं आप लोगों को मैप में बाद में दिखलाऊंगा. आई विल शो ईच एंड एवरीथिंग इन मैप, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू दिस टाइम एक्सप्लेन. जम्मू कश्मीर से लेकर और हिमालय जो है यह अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है. ठीक, अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय जो है फैला हुआ है, जिसकी लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर. यहां पर आप जानते हैं कि इंडस गॉर्ज, इंडस रिवर है. तो फ्रॉम इंडस गॉर्ज टू ब्रह्मपुत्रा गॉर्ज इन अरुणाचल प्रदेश, इंडस गॉर्ज इन जम्मू एंड कश्मीर, ब्रह्मपुत्रा गॉर्ज इन अरुणाचल प्रदेश. यहां से यहां तक इसका एक्सटेंशन है, राइट? तो 2500 किलोमीटर एक आर्क जैसा, जस्ट लाइक एन आर्क, यह आर्क जैसा फैला हुआ है, ऐसे फैला हुआ है, इस तरह से हिमालय फैला हुआ है. तो आई गेव यू जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हिमालय. यार इसकी चौड़ाई जो है यह वेस्ट में अधिक है और ईस्ट में क्या है, कम है. वेस्ट में इसकी चौड़ाई अधिक है और ईस्ट में कम है. तो वेस्ट में कितना है इसकी चौड़ाई, वेस्ट में 400 किलोमीटर, विथ हो जाएगा 400 किलोमीटर, और यही 150 to 160 किलोमीटर इन द ईस्ट.
तो हिमालयाज विविध क्या है इसका 400 किलोमीटर टू 150 टू 160 किलोमीटर इन द ईस्ट and length 2500 kilometer from west to east. They lie, they spread in the states of Jammu Kashmir. जम्मू कश्मीर अब तो खैर स्टेट नहीं है, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राइट, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इस सभी स्टेट में, भूटान ऑल्सो, इस सभी स्टेट में, कंट्री में हिमालय फैला हुआ है, राइट। अब हिमालय जो है, हिमालय का जो एल्टीट्यूडनल जो वेरिएशन है इन द ईस्टर्न हाफ ऑफ हिमालय, यानी नेपाल से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, आधा नेपाल से अरुणाचल प्रदेश तक इसका एल्टीट्यूडनल वेरिएशन इधर हाई अधिक है और इधर अपेक्षाकृत कंपैरेटिवली इन द वेस्टर्न हाफ द एल्टीट्यूडनल वेरिएशन इज लेसर। ठीक है, तो ये हो गया हिमालय का नाउ। और हिमालय को हम, क्योंकि हिमालयाज आर वेरी लार्ज माउंटेन्स और इतने विशाल माउंटेन फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, या इतना इसका फैलाव है, तो क्यों नहीं हिमालय को कई, ऐसे हिमालय को कई भाग बांटा गया। हम 3 भागों में यहाँ बांटते हैं। हिमालय डिवाइडेड इनटू 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। रेंजेज पैरेलल, क्योंकि ये जो हिमालय है ऐसे, ठीक है, तो हिमालय का जो रेंज है यह कई भागों में, यह इसके कहते हैं हिमाद्री, हिमाद्री रेंज, हिमाद्री रेंज, हिमाद्री, हिम से बना हिमाद्री, हिमालय जानते हैं कि बर्फ होता है, तो हिमालय मतलब क्या होता है, एबोर्ड ऑफ स्नो, बर्फ का घर। तो ड्यू टू कवरिंग विथ आइस एंड स्नो, Himalayas, these mountains are known as Himalayas, and the uppermost part of Himalaya known as what? Himadri. Himadri कई नाम है, यह हिमाद्री है, हिमाद्री, और चिल्ड्रन यू मस्ट रिमेम्बर, हिमाद्री को और नामों से जाना जाता है, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री ऑल्सो नोन एज ग्रेट हिमालय, ठीक। और उसके और एक नाम है इनर हिमालय, इनर हिमालय, ठीक। हिमाद्री रेंज, हिमाद्री ऑल्सो नोन एज ग्रेट हिमालय, और ग्रेट और ग्रेटर, एंड इट ऑल्सो नोन एज इनर हिमालय, जो कि सबसे अंदर है। तो यह हिमाद्री रेंज है, राइट। इट इज टोटली कवर विथ आइस एंड स्नो। ये पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक यह जो भाग है, यह पूरा क्या है, बर्फ से, आइस एंड स्नो से आच्छादित है। इसकी सबसे विशेषता है। और इट ऑल्सो नोन एज सेवरल वैलीज एंड पासेस, वैलीज, पासेस एंड ग्लेशियर्स, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, केदारनाथ ग्लेशियर, सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड। पासेस क्या है, पास क्या है, यह जोग्राफिकल या नेचुरल रूट है, जो कि माउंटेन के बीच नेचुरली वे बनता है। तो बहुत से पास इस हिमाद्री रेंज में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पासेस हैं, और उन पासों के माध्यम से एक रीजन से दूसरे रीजन में जाया जा सकता है। दे आर द नेचुरल रूट्स, ठीक है, थ्रू विच वी हैव डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन। तो जैसे जोजिला पास, ये जोजिला पास कहाँ है, जोजिला पास जम्मू कश्मीर में है, हिमाद्री रेंज में ही है, यू मस्ट रिमेंबर। जोजिला पास, सिपकिला पास, सिपकिला पास हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला पास है। नाथुला पास सिक्किम, नाथुला पास, बोमडिला पास अरुणाचल प्रदेश। तो ये सब जो है, दे आर द पासेस, एंड ऑल द पासेस आर फाउंड इन हिमाद्री रेंज। हिमाद्री रेंज, ग्रेट हिमालय जो है, और भी नामों से यहाँ दे आर ऑल्सो फेमस फॉर हाईएस्ट पिक्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट, हाईएस्ट पिक्स। अब यहाँ पर पिक्स जो है, पिक्स ऑफ द हिमाद्री, हिमाद्री, इसकी एवरेज हाइट कितनी है, एवरेज हाइट, हिमाद्री की एवरेज हाइट 6000 मीटर,
एवरेज हाइट ऑफ हिमाद्री इज 6000 मीटर। और वर्ल्ड के हाईएस्ट पिक्स इसी हिमाद्री में रेंज में आते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, जानते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर, राइट। 8850 मीटर इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। अब बताइए कि यहां से इतना, यह दिस इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक, विच पीक इज फाउंड इन हिमाद्री। तो हिमाद्री, उसके बाद ये कहाँ है, ये सिक्किम, यह नेपाल में है, नेपाल। सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमाद्री आर लोकेटेड और फाउंड इन नेपाल। यू नो दैट नेपाल इज वन ऑफ द नियरेस्ट नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। तो ये नेपाल हो गया। कंचनजुंगा, कंचनजुंगा जैसे 8598 मीटर, ये कहाँ है, इंडिया में है, कंचनजुंगा इंडिया। फिर नंगा पर्वत, नंगा पर्वत ये कहाँ है, ये भी इंडिया में है, नंगा पर्वत। नंदा देवी, नंदा देवी, नंगा पर्वत कहाँ है, जम्मू कश्मीर, ठीक। अन्नपूर्णा, छोड़ गया, ये अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा ये कहाँ है, अन्नपूर्णा है नेपाल में, ये नेपाल में पड़ेगा। और ये सबकी हाइट जो है ये 8000 मीटर से अधिक है। उसे फिर कम मकालू भी है। नाउ मकालू ऑल्सो लाई इन नेपाल। एक नंदा देवी इन उत्तराखंड, इंडिया। कामेट ऑल्सो उत्तराखंड, इंडिया। एंड दी पिक्स आर लेसर देन 8000 मीटर। नमचा बरवा line where? Namcha Barwa lie in Arunachal Pradesh. And all the, it means I mean to say that nearly 100 peaks are found in Himadri range, जिसकी हाइट जो है 8000 मीटर से अधिक है। I just named only very few mountains, my mountain peaks. The highest peak Mount Everest, Kanchenjunga the second highest peak of Himalaya, that lying कंचनजुंगा किस स्टेट में है, सिक्किम में है, इंडिया के सिक्किम स्टेट में कंचनजुंगा है। नंगा पर्वत जो है हिमाचल, ये जम्मू कश्मीर। नंदा देवी, यही नंदा देवी उत्तराखंड। अन्नपूर्णा नेपाल। तो देयर आर सो मेनी माउंटेन पिक्स व्हिच आर ऑल द पिक्स आर टोटली कवर्ड विथ हाई स्नो। इसका, इस पार्ट का व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द हिमाद्री रेंज ऑफ हिमालय। हिमाद्री रेंज के सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, बीइंग कवर्ड विथ हाई स्नो, हिमाद्री जो है कई नदियों का जन्म देती है। मेनी ऑफ रिवर्स टेक द बर्थ फ्रॉम हिमाद्री। बच्चे, बहुत सी नदियों का उद्भव यानी हिमाद्री रेंज से हुआ है। तो हिमाद्री जो है, हिमाद्री कई नदियों का जन्म, जैसे गंगा, गंगा एक, इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्रा, जमुना, सो मेनी रिवर्स विच राज इन हिमालय। उस तरह फिर नेपाल से होते हुए गंडक, गंडक, कोसी, बागमती, घाघरा, ऑल रिवर्स आर इन हिमालय फ्रॉम हिमाद्री रेंज, ठीक। तो ये सभी जो ग्लेशियर्स है, ऑल द ग्लेशियर्स प्रोवाइड अबंडेंस ऑफ वाटर व्हेन ग्लेशियर्स मेल्ट। तो इन नदियों का प्रादुर्भाव जो है इन्हीं हिमाद्री रेंज से हुआ है, जो कि ये सब नदियां हमारे देश के लिए बहुत पानी लाती हैं, जो कि इरिगेशन के लिए सो मेनी वर्क्स विच आर डन, ठीक है, बाय यूजिंग दी रिवर्स वाटर। तो इस तरह से बच्चे, ये मैं आपको एक हिमाद्री रेंज के बारे में बताया। अब मैं दूसरे वीडियो में आपको अन्य 2 अदर पर्ल रेंजेज ऑफ हिमालय, हिमाचल और शिवालिक के बारे में बताऊंगा। आई होप दैट यू विल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।